right, the data modeling activity, and also, right, how we can use the data manipulation task, right, in Power View, right. So Power Pivot वाला part है how we are just right going to do, right, you with the help of DAX functions, right, in Power BI. तो अभी तक जो हमने जो भी लर्न किया था दैट वाज समथिंग, राइट, वी वर जस्ट प्रिपेयरिंग द डेटा, एक्सट्रैक्टिंग, डूइंग द ETL टास्क, राइट, गेटिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज, एंड देन फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे पावर बीआई के रिपोर्ट के फॉर्म में, राइट. नाउ व्हाट विल डू, राइट, विल जस्ट मूव अहेड एंड देन इसी पे जाके विल जस्ट गो ऑन, राइट, रिपोर्ट पार्ट. एंड इसी में आप जब जाओगे यहाँ पे, राइट, देन सपोज एक हम रिपोर्ट बना रहे हैं, राइट, उसमें मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेड कॉलम्स की, राइट, एंड ऑल्सो वी जस्ट रिक्वायर्ड, राइट, सम मेजर्स, राइट. मेजर इज नथिंग बट जस्ट राइट डैक्स क्वेरी को जो हम सेव करते हैं, दैट इज समथिंग वी हैव, राइट, इन पावर बीआई. इफ यू रिमेम्बर, राइट, देन मैंने एक सेशन लिया था आप लोगों का पावर पाइवेट का, राइट. पावर पाइवेट वाले सेशन में हमने देखा था कि वहां पे भी हम डैक्स फंक्शन का यूज कर रहे थे, राइट, फॉर, राइट, डूइंग सर्टेन टास्क, राइट. तो सेम वे इन पावर बीआई आल्सो, राइट, वी कैन जस्ट यूज दोस डैक्स फंक्शंस, राइट, to, right, just shape your data and just prepare reports and all, right. Now let's just try to move here, right, and we'll see that what is DAX and all, right. So in, right, in we can define DAX as, right, that DAX is nothing but just a data analysis expression, right. Is DAX is also both, right, query language and function language also, right. But इसका यूज करके हम कोई दूसरा फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट. yes, there are lots of functions available. Also we can use here the query, right, to get the data from data source, right. बट इसका यूज करके हम कोई अपना फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ DAX is to help organizations analyze, understand and enhance data for analytics and reporting, right. तो स्पेशली इसका यही ऑब्जेक्टिव था. जैसे कि एक्सेल में डिफरेंट फंक्शंस को हम यूज करते हैं just to creating some reports, right, just getting some insight out of we have big data set. At the same way, right, in Power BI 2, right, we have DAX जिसका यूज करके हम डेटा को, राइट, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, राइट, then understand and then we just, right, enhance the, right, under data for analytics and reporting. So DAX is described as a functional language, which means calculations primarily, right, use functions to generate results. A wide variety of functions are, right, provided to help with arithmetic, string manipulation, date and time handling and more, right. Functions can be nested, right, but you cannot create your own function, right. जैसे कि हमने बात किया कि फंक्शनल लैंग्वेज भी है ये, बट अपना हम फंक्शन इसमें क्रिएट नहीं कर सकते, राइट. So this is, right, something we have, right, in DAX. Now, right, we'll just move ahead. Then in DAX side we have, right, some different types of, right, category of functions available. Right, सबसे पहले है aggregation function, then daytime, and filtering यदि करना है हमें तो filter का function इसके अंदर है, right. Then information है, informatory function we have, logical function we have, math trick function we have, right. Then parent child function we have, right. Then statical, then text and relationship, and then table manipulation functions, right, we have. So these all are functions available, right, in DAX, right, in DAX itself, in Power BI itself, in the form of DAX. Yes. तो DAX है, DAX is nothing but just a function language, right, जो कि हम लोग यूज करते हैं for creating calculated column, right, creating measures, right, then just transforming the data, right. So for all we use these DAX functions, right. So if we move here, then here we have some, right, the एग्रीगेशन फंक्शन, डैक्स एग्रीगेशन फंक्शन, राइट. सपोज मैंने क्या किया, एक डेटा सेट को लोड किया, राइट. सो हियर जस्ट लोड द डेटा सोर्स, राइट. एक डेटा सेट हमारे पास था, मैंने इसको लोड कर लिया. सो आई जस्ट गो ऑन, राइट, F5, then is go on class file, right, and then we have Power BI here. एंड इसी में से हमने क्या किया, डेटा सोर्स जो हमारा था, आई जस्ट लोड, राइट. अभी के लिए मैंने यहाँ पे पर्सन भी लोड करता हूँ, ऑर्डर्स भी लोड करता हूँ, एंड पर्सन को भी मैं लोड करूंगा यहाँ पे. एक और डेटा सेट है उसको भी हम लोड करेंगे. एंड हियर वी सी दैट हाउ वी कैन इवन परफॉर्म द डेटा मॉडलिंग एक्टिविटी टू. सो आई जस्ट लोड दिस, देन इसको हम लोड कर लेते हैं, राइट. वी आर डन विद दिस पार्ट, राइट. एंड एक और डेटा सेट हमारा था तो उसको भी हम यहाँ से लोड करते हैं. सो आई क्लिक ऑन दिस.
देन दूसरा डेटा सेट हमारा था पर्सन का, so I'll just select this, right click OK. Now right we are going to load the other data set also. इसको भी हमने पिक कर लिया. Now just right load. दोनों आपका लोड हो गया, राइट. सो व्हाट विल डू, राइट हियर विल फर्स्ट क्रिएट, राइट, द will use right these aggregation function to right create measures, right. एंड देन फिर उसको हम देखेंगे कि मेजर्स किस तरीके से वर्क करता है. एट ऑल्सो एट विल जस्ट यदि मुझे कॉलम लेवल पे कुछ एग्रीगेशन करना है, राइट, जैसे दो कॉलम है उसके वैल्यू को मुझे एग्रीगेट करना है, प्लस करना है, राइट, देन इवन वी कैन डू दैट टू, राइट. तो उसके इसमें कैलकुलेट कॉलम अब क्रिएट हो जाएगा, राइट. सो कैलकुलेटेड कॉलम, राइट, या फिर मेजर्स क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डैक्स फंक्शन का. एंड गाइज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अभी तक जो हमने किया था, जो फंक्शनलिटी अभी तक हमने यूज किया है, ड्रिल, ड्रिल थ्रू, एट बुक मार्क सिलेक्शन, राइट, देन क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशंस, राइट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट, ये सारे जो पार्ट हैं उसका आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना है, अदरवाइज भूल जाओगे तो फिर काम, फिर प्रॉब्लम होगी, राइट, बाद में. सो उसको आपको करना ही करना है, राइट. It will take some time to load, right, because हम दोनों एक साथ फाइल डाल दिया था, so that's why it is just taking some time. अबे हो जाए, क्या टाइम लगा भाई. ठीक है. सो राइट बिफोर जस्ट मूविंग एट, अभी देखो एक्सेल के अंदर जो हमने फंक्शन लर्न किए हैं अभी तक, राइट, एक्सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उसका 80% फंक्शन डायरेक्ट यूज होता है पावर बीआई में इन द फॉर्म ऑफ डैक्स, राइट. जैसे कि मेन मीन है, ये भी आपके एक्सेल में था. मैक्स है, राइट, एवरेज है, सम है, राइट. ये सारे के सारे फंक्शन जो है आपके एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट. एंड देन वी कैन यूज दिस फंक्शन हियर, राइट, डायरेक्टली इन पावर बीआई in DAX, in the form of DAX here, right. Same way if you just move ahead, then DAX aggregation function, right, again here we have distinct count, right. तो ये count distinct है, this is something like a part of SQL here, right. But इसी में आप देखोगे काउंट, काउंट है, राइट, ये सारे सारे जो फंक्शन है वो आपके एक्सेल के हैं, राइट. दूसरा यहाँ पे काउंट रोज आ गया, काउंट ब्लैंक आ गया, राइट. सो काउंट ब्लैंक की जगह राइट पार्ट ऑफ एक्सेल फंक्शन, इंफॉर्मेटिव फंक्शन जो एक्सेल का था, राइट, दैट फंक्शन हियर वी हैव द काउंट blank, right, count, sorry, counting function था. Then here with the logical function and or, right, not, if you're right, ये सारे सारे जो है again, right, excel के ही function सारे के सारे हैं logical में. Then if again, right, we'll just move ahead, then you have a DAX function, that is DAX, right, replace, search, upper, right, fixed, concatenate, upper, lower, right. So all these functions, right, we have available at in DAX itself, right. Then same way here the date का DAX function है, date, hour, weekday, right, now, end of month, right. So we have right these some date functions available, and ये सारे date function आपके Excel में भी है, right. Then if you go here, then text informative function here we have is blank, is number, is text, is none, right, is non text, right, is error. इस सारे के सारे जो आपके हैं, राइट, ये भी फंक्शंस आपके एक्सेल में अवेलेबल है, राइट. एंड यू कैन जस्ट राइट यूज दिस. तो इज नॉन टेक्स्ट, राइट, इज एरर, देखो इज ब्लैंक, इज नंबर, इज टेक्स्ट एंड इज नॉन टेक्स्ट आल्सो, राइट. यानी कि टेक्स्ट के अलावा कुछ और है, उसको फ्लैग करने के लिए वी कैन जस्ट यूज, राइट, दिस इज नॉन टेक्स्ट, राइट. तो इस केस में क्या ब्लैंक वाला है उसको भी ये फ्लैग करेगा, राइट. देन नेक्स्ट, राइट, विल जस्ट मूव अहेड. अब इसी पे हम आगे आते हैं, जब एक बार देखते हैं डेटा लोड हुआ या नहीं हुआ. सो इफ डेटा इज लोडेड, राइट, क्या है, दोनों का नेम सेम है, सो दैट माइट बी दैट वुड बी कंफ्लिक्टिंग. लेट अस क्लोज दिस, राइट. पहले इसको क्लोज करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे.
हाँ, हैंग हो गया है कहीं पे, राइट? सो लेट मी जस्ट क्लोज द सेम रो, पावर BI here we have, right? I'll just select this and I'll aim this task. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हैंग हो जाता है, राइट? तो हैंग होने के केस में क्लोज कर दो यहाँ से जाके। Now again I'll just try to open up Power BI. गाइस, कल वाले क्लास से किसी को कुछ पूछना है? राइट, जो बुकमार्क कैसे हमने लगाया था, सिलेक्शन कैसे हमने क्रिएट किया था, राइट? समथिंग लाइक दैट बिफोर मूविंग अहेड, राइट? बिकॉज डेक्स के बाद फिर आपका 3-4 क्लास रहेगा पावर बीआई में, एंड दैट मीन्स राइट इन द। तो यदि कुछ पूछना है, कहीं पे कुछ डाउट है, कभी आपने प्रैक्टिस किया हो, राइट, एंड आपको समझ में नहीं आया कि हाउ वी कैन जस्ट अप्लाई, राइट, द बुक मार्क सिलेक्शन, राइट, देन बटन कैसे यूज करते हैं, राइट? बटन कैसे इंसर्ट करेंगे, ड्रिल थ्रू कैसे वर्क करता है, राइट? तो यदि इसमें कुछ डाउट है गाइस, देन जस्ट आस्क टुडे, सो दैट मैं आगे बढ़ने से पहले उसको कंप्लीट कर दूं। एक एक करके इसको पहले बनाते हैं, उसके बाद इसको लोड करेंगे। सारे साइड जस्ट लोड दिस। एक बार लोड हो जाता है फिर दूसरा फाइल भी लोड करूंगा, और दो फाइल छोटा है। हाँ, हाँ, दोनों का नेम सेम है ना, तो दैट्स वाई वो प्रॉब्लम कर रहा है। सीट 1 उसमें भी आ रहा है, सीट 1 इसमें भी आ रहा है, टेबल का नेम सेम जा रहा है, राइट? सो दैट्स वाई वो इतना टाइम लगा रहा है इसको करने में। इसको रीनेम कर देते हैं, इसका नेम दे देते हैं हम, राइट? इसको रीनेम करके हम इसका नेम दे देते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आ गया, राइट? देन इसी में हम यहाँ पे नेम दे देंगे एक और, राइट? अब दूसरा टेबल हम वहाँ पे लोड करेंगे, विल गो होम, देन यहीं से हम दूसरा टेबल ले लेते हैं। तो दूसरा टेबल हमारा है पर्सन का, राइट? लेट मी जस्ट डू वन थिंग, ये पर्सन है, पहले मैं पर्सन को खोलता हूँ, क्या तो कुछ नेम हम चेंज करेंगे इसमें। पर्सन, हियर वी हैव पर्सन, 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 हियर वी हैव पर्सन 2 में क्या है, देखते हैं इसमें क्या है। व्हाट विल यू जस्ट चेंज द नेम ऑफ, राइट, दिस पर्सन है, REG हमने लिखा है, राइट? तो यही मैं चाह भी रहा था, इसका जो कॉलम का नेम हो वो अलग हो, राइट? एंड देन वी सी दैट हाउ वी कैन परफॉर्म द, राइट, डेटा मॉडलिंग है। तो मैंने इसको क्लोज किया। नाउ आई राइट लोड द पर्सन 2, राइट? सो यहाँ पे जाएंगे, देन वी जस्ट लोड द पर्सन 2, राइट? लेट्स से पर्सन 2 हियर वी हैव, आई जस्ट क्लिक ओके। नाउ वी आर डन, इट विल ओपन अप। देन फिर हम इसमें देखेंगे कैसे इसमें काम कर सकते हैं। आई सेलेक्ट दिस, दैट इज द लोड। लोड हो गया डायरेक्ट, बट इसको मुझे लोड नहीं करना था, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म भी करना था। पर्सन 2 वाला जो डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज कॉलम उसमें आ नहीं रहा सही से। यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे देखो कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहा है, राइट? बट इसका जो कॉलम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो वी राइट मेक दिस फर्स्ट रो एज हेडर, राइट? एंड देन, एंड स्पेशली ये तब होगा जब आपका जो डेटा है, राइट, सारे जितने भी कॉलम है सब में टेक्स्ट वैल्यू ही है, राइट? तो उस केस में ये बाय डिफॉल्ट हेडर देता नहीं है। सो वी हैव टू जस्ट डू दिस स्टेप। देन इसका नेम हम दे देते हैं पर्सन, नेम ऑफ दिस टेबल इज पर्सन, राइट? नाउ we are done, then I'll try to close and apply. Now that here we are, अब यहाँ पे लोड हो गया आपका ये, ठीक है? So here we have loaded, right, this information, person and region यहाँ पे आ गया, and then here we have order by, right? Suppose मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे यहाँ पे टोटल रिटर्न करना है, right? मुझे देखना है कि टोटल क्या है, राइट? जो टोटल सेल्स क्या है, राइट? देन टोटल
टोटल इसमें टोटल क्वांटिटी क्या है, राइट। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पिक करना है, राइट। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, राइट, विल जस्ट गो एंड क्रिएट हियर द measure, right? So here we have the new measure and quick measure also, right? Right now I'm going to create the new measure, right? I'll click on this. Now it will try to open up, right, this part here. जिस तरीके से एक्सेल में फॉर्मूला बार होता है, सेम वे here, right, also we have in right formula here. मुझे एक मेजर क्रिएट करना है, हमने बोला कि यहाँ पे राइट मेजर इज टोटल राइट सेल्स, टोटल प्रॉफिट, आई जस्ट से द टोटल प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा सम, राइट, एंड देन हियर जस्ट पास द प्रॉफिट, जो कॉलम का नेम है वो, राइट। नाउ वी आर डन। देन इसी को हम यहाँ पे सम कर लेंगे एंड देन दिस इज समथिंग हियर वी हैव द प्रॉफिट, राइट। तो जब यहाँ पे मेजर क्रिएट करते हो, राइट, देन इट विल जस्ट राइट शो यू समथिंग लाइक दिस। तो टोटल प्रॉफिट हियर वी है, यहाँ पे देखो इसका जो साइन है कैलकुलेटर का साइन है, राइट। तो जब भी हम यहाँ पे मेजर क्रिएट करेंगे तो कैलकुलेटर का साइन यहाँ पे बन जाएगा, राइट। एंड इफ यू वांटेड टू सी राइट दिस इंफॉर्मेशन एट टेबल व्यू, ये मुझे कहीं पे भी नहीं दिखेगा। जब यहाँ पे जो सिर्फ जो डेट, राइट, जो हमने बनाया है, यदि मैं इस पे क्लिक करूँ कहीं पे, राइट, सब करेक्ट यहाँ पे मेरे दिख गया हमें कॉलम में। बट जब इस पे क्लिक करोगे, राइट, देन यू विल सी राइट ओनली द डेक्स, जो फंक्शन को जो क्वेरी आपने लिखा है वही यहाँ पे दिखेगा, राइट। So DAX, right, query is DAX function is nothing but just a right code or formula we have right entered in, saved in Power BI. Whereas अब इसी तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम का जो साइन है दैट इज समथिंग विद कैलकुलेटर, सॉरी, मेजर जो हमने क्रिएट किया उसका साइन है यहाँ पे, राइट, कैलकुलेटर का। नाउ आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट हियर राइट वन कैलकुलेटेड कॉलम आल्सो, राइट। मुझे यहाँ पे जितने भी राइट जो यहाँ पे सेल्स आ रहा है या फिर जिसमें क्वांटिटी राइट मोर देन 5 है, मुझे उसमें कुछ अलग डेटा पॉपुलेट करवाना है, राइट। तो फॉर दैट व्हाट आई डू, आई राइट गो अगेन एंड देन यहाँ पे हम जाके एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। एंड यानी कि एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बकेटाइजेशन कर रहे हैं, राइट। सो आई जस्ट गो एंड क्रिएट हियर अ न्यू कॉलम, राइट, यहाँ पे आया न्यू कॉलम। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक क्राइटेरिया के बेसिस पे राइट कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लेकर आना है, राइट। यानी कि हमने बोला कि सैलरी यदि, राइट, सैलरी यदि, तो हमने बोला यहाँ पे फ्लैग, राइट, यहाँ पे एक फ्लैग जनरेट करते हैं, फ्लैग, राइट। देन हमने बोला कि यहाँ पे इफ सैलरी इज, राइट, इफ देन आई स्टार्ट ब्रैकेट, जैसे आपने स्टार्ट किया यहाँ पे इसका जो है आउटपुट आता है, राइट, कि कैसे वर्क करेगा। एंड लॉजिकल टेस्ट, राइट, हमने बोला कि सैलरी, सॉरी, सेल्स, राइट, सेल्स इज ग्रेटर देन, सेल्स की जगह पे हम क्वांटिटी लेते हैं, दैट वुड बी मोर राइट रिलेवेंट। हमने यहाँ पे गए, राइट, हमने बोला कि क्वांटिटी दे दो हमें, क्वांटिटी, राइट, ऑर्डर क्वांटिटी हियर वी हैव इज ग्रेटर देन राइट 10, ठीक है। यदि ये ग्रेटर देन 10 है तो तुम यहाँ पे क्या बोलो, राइट, जस्ट बोल दो इसको कि दिस इज गुड, राइट। अदरवाइज, अदरवाइज क्या कर बोल दो यहाँ पे, गुड बोल दो एंड देन यदि नहीं है तो इसको बोल दो तुम बैड, राइट। या फिर हम इसको बोल देंगे राइट नीड इम्प्रूवमेंट, नीड इम्प्रूवमेंट, राइट। यानी कि ट्रू है तो ये वाला आउटपुट दे दो, यदि फॉल्स है तो ये वाला आउटपुट दे दो, राइट। आई जस्ट राइट सेव दिस, नाउ राइट वी आर डन। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे भी वैल्यू राइट इज मोर देन 10 है, देयर वी आर सीइंग आउटपुट एज गुड। एंड जहाँ पे भी वैल्यू राइट लेस देन 10 है, राइट, देयर वी आर गेटिंग द नीड इम्प्रूवमेंट राइट पार्ट हियर। एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक डेटा का जो न्यूमेरिकल डेटा है, राइट, उस पे एक सर्टेन क्राइटेरिया बेसिस पे वी कैन जस्ट राइट कैटेगराइज टू। और कॉलम, कैलकुलेट कॉलम हम तभी क्रिएट करेंगे जब उस कॉलम को हमें कहीं ना कहीं फिल्टर में यूज करना है, राइट। यानी कि काम नहीं चलेगा विदाउट कॉलम क्रिएट किए हुए, यानी अदरवाइज राइट व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट राइट क्रिएट द मेजर ओनली, राइट, बिकॉज मेजर वाले पार्ट पे क्या होता है, मेजर का डेटा स्टोर नहीं होता है कहीं पे भी, राइट। बट इस केस में जब हमने फिजिकल कॉलम बना दिया यहाँ पे, तो एक जो डेटा है, राइट, दैट इज स्टोर्ड हियर इटसेल्फ, राइट, यहीं पे स्टोर हो जाता है ये डेटा, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। आज हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से टैक्स का यूज करके वी कैन क्रिएट द कैलकुलेटेड कॉलम एंड देन हाउ वी कैन क्रिएट द राइट मेजर टू।
अब हम आते हैं फिर से इसी पावर व्यू में एंड इस मेजर को देखते हैं कि हाउ इट जस्ट वर्क, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक हम यहाँ पे बनाते हैं दिस समथिंग हियर वी हैव द राइट कॉलम चार्ट, राइट। कॉलम यहाँ पे हमने ऐड किया। नाउ राइट आई जस्ट ऐड हियर दिस जो कैलकुलेट कॉलम हमने क्रिएट किया था वो राइट टोटल, हाँ टोटल, राइट। दिस इज समथिंग एज टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमें दिख जाएगा, राइट। बट डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जब आप वाई एक्सिस में देख रहे हैं यहाँ पे एग्रीगेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई एग्रीगेशन नहीं है। बट इसी वाले पार्ट पे क्या कर रहे हैं, एक और हम क्रिएट करते हैं सेम टाइप का, राइट। एंड इसको हम यहाँ पे रखते हैं एंड आई जस्ट राइट ऐड दिस। अब दिस टाइम राइट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हमने प्रॉफिट का जो फील्ड है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट। सो हियर वी हैव दिस डेटा सेट। अब इसी में हम प्रॉफिट का राइट फील्ड डाल देते हैं, सो हियर द प्रॉफिट आल्सो, राइट। प्रॉफिट का हमने इसमें ऐड किया। देखो नंबर दोनों के सेम आ रहे हैं, राइट। हियर वी दिस इज आल्सो राइट 2867 और यहाँ पे भी आ रहा है 28697, राइट। ठीक तो बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका भी जो एग्रीगेशन है राइट यहाँ पे आ रहा है, इस लेवल फील्ड लेवल पे आ रहा है, राइट। एंड देन एग्रीगेटेड वैल्यू हियर वी आर सीइंग, राइट। बट इस केस में एग्रीगेशन जो है एट कैलकुलेशन लेवल है, राइट। सपोज मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको चेंज कर दिया, सम था, सम की जगह पे मैंने बोला ठीक है नहीं मुझे सम नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू राइट सी द सपोज मिनिमम वन, राइट। मिनिमम बता दो, यहाँ पे मैंने मिनिमम लिखा, राइट। मिनिमम ऑल्सो एग्रीगेटेड वन, तो मिनिमम जैसे मैंने यहाँ डाला, नाउ इट विल राइट गो डाउन एंड देन यहाँ पे फिर आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, राइट। एंड दैट इन्फॉर्मेशन हियर विल गेट, राइट। दिस समथिंग हियर विद द मिनिमम वन, राइट। इस पे जब जाओगे आप तो यहाँ पे आपको मिनिमम दिख जाएगा, तो दिस समथिंग हियर विद द राइट मिनिमम, मिनिमम 6599, ठीक है। यानी कि पूरा डेटा सेट में सबसे मिनिमम जो वैल्यू है दिस वन, राइट। बट मुझे इसको मिनिमम करना होगा तो यहाँ पे जाके मुझे फिर यहाँ पे जाके एग्रीगेशन सेलेक्ट करना होगा, राइट। तो विल जस्ट राइट गो ऑन एंड देन सेलेक्ट द एग्रीगेशन वाला पार्ट ऑल्सो, राइट। सॉरी, इस वाले पार्ट पे जाके हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एग्रीगेशन करना होगा सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, राइट। एंड देन अकॉर्डिंगली राइट, यस राइट, अकॉर्डिंगली टू जस्ट राइट वर्क ऑल्सो। नॉट ओनली दिस राइट, बट अब इसको हम यदि स्लाइस करेंगे कैटेगरिकल डेटा इसमें डाल देंगे तो ये क्या करेगा, स्लाइस कर देगा उसको डिफरेंट पार्ट पे। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे भी, इसको जाएंगे गो एंड सेलेक्ट द राइट पार्ट, इसको सेलेक्ट करके देन विल इसको राइट सब कैटेगरी है, राइट। अब इसमें देखो इसमें भी वैसे ही चल रहा है, राइट, जैसे कि दूसरे वाले में चल रहा था। सो ये भी राइट मिनिमम वाले पार्ट पे, मिनिमम से हर एक कैटेगरी का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इंफॉर्मेशन हेयर वी आर सीइंग, राइट। अब इस पे आते हैं, मैंने क्या कि इस पे भी हम मैंने सब कैटेगरी डाल दिया, राइट। तो नाउ हियर वी हैव द डेटा, राइट। एंड इसमें हम जो डेटा दिया है वो सम के बेसिस पे चल रहा है, राइट। बट इसमें भी जब मैं मिनिमम कर दूंगा, राइट, देन इट विल राइट विल सी द सेम काइंड ऑफ राइट फाइल, राइट। सो अब इस वाले पार्ट पे देखो एग्रीगेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे चल कर रहा है, राइट। बट इस वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, एग्रीगेशन राइट पहले ही हो जा रहा है डेक्स लेवल पे, राइट। दैट्स वाई जब हम डेक्स क्रिएट करते हैं देन डेक्स इज मच मोर फास्टर देन राइट द एग्रीगेशन जो यहाँ पे हम कर रहे हैं उससे, राइट। बिकॉज ऑलरेडी वो सेव्ड होता है, कंपाइल्ड होता है, राइट। एंड दैट्स वाई इट इज मच मोर फास्टर देन राइट द एग्रीगेशन वी आर डूइंग एट फील्ड लेवल टू, राइट। In this way we can just write create measures and calculated column, right। अब calculated column का जो यूज होता है स्पेशली हम फिल्टर्स में यूज करते हैं, राइट। सपोज मैंने एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया, जो दो दो बकेट बनाए हमने, नीड इम्प्रूवमेंट एंड देन हियर देयर आल्सो राइट वी हैव क्रिएटेड दैट इज गुड, तो हमने बनाया था आइटम। अब मैं मुझे उसी को यहाँ पे ऐड करना है, सो आई इंसर्ट हियर स्लाइसर, स्लाइसर में ऐड करके देन अगेन आई गो एंड देन ऐड those right that column also here, right। so हमने हम लिखा था that is flag, flag के लिए देखो जब हम कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करते हैं तो उसका साइन ये होता है, right। I just add here the flag, I just click here, now here we write the flag also, right। इस पे जब क्लिक करोगे then it will write go to good, then इस पे क्लिक करोगे then it will just go on right bad। so let me just write make this, अब गुड पे क्लिक करोगे देन इट विल राइट सो ओनली द गुड वन, यदि हम नीड इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करोगे देन इट विल शो अप द राइट नीड इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट राइट द चार्ट्स, राइट। एंड देन उसी में हम यहाँ पे मेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड देन वी कैन क्रिएट द कैलकुलेटेड कॉलम आल्सो, राइट। तो मेजर एंड
कैलकुलेट कॉलम में डिफरेंस क्या है? मेजर इज राइट समथिंग वेरी लाइट वेटेड एंड इट इज जस्ट नथिंग बट अ DAX function, right? We are using that we can say that is saved DAX function. उसी तरीके से राइट जो दूसरा नॉर्मल एग्रीगेशन चलता है दैट इज एट फील्ड लेवल, राइट? DAX से जो आउटपुट आ रहा है दैट इज मच मोर फास्टर देन द राइट वी आर जस्ट गेटिंग व्हेन वी जस्ट अप्लाई द एग्रीगेशन एट BI लेवल, ठीक है? तो यही चीज आपका इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट? नाउ व्हाट वी कैन डू, राइट? आई जस्ट गो हियर एंड देन वी क्रिएट हियर द प्रॉफिट में फिर से हम कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करते हैं, तो विल गो राइट अगेन ऑन कैलकुलेट कॉलम, सॉरी we'll just right go here again profit में गए हम यहाँ पे and then we'll just right go and then create here मेजर हियर, राइट? हमने बोला यहाँ पे कि तुम्हें यहाँ पे एक मेजर क्रिएट करना है जिसमें कि हमें टोटल या फिर एवरेज क्वांटिटी शो करना है, राइट? एवरेज क्वांटिटी शो करना है, देन वी कैन जस्ट डू दैट, राइट? या फिर मैक्सिमम क्वांटिटी शो करना था, हमने बोला कि मैक्सिमम क्वांटिटी तुम शो करो, मैक्सिमम क्वांटिटी, राइट? मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, नाउ वी आर डन, राइट? एंड इसको हमने बोला मैक्स क्वांटिटी, मैक्स मैक्स राइट क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट? मैक्स क्वांटिटी है, राइट? तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? सो इन दिस के व्हाट वी कैन जस्ट राइट हियर मैक्स क्वांटिटी, ठीक है? मैक्स क्वांटिटी हमने लिख दिया इसमें। अब मुझे मैक्सिमम क्वांटिटी, अब इसको एक चीज में यहाँ पे आज आप ऐड करोगे आप, मैक्सिमम क्वांटिटी जो होगा दैट मीन जस्ट राइट विल सी हियर, राइट? एंड यहाँ पे फिर से देख रहे हो कोई एग्रीगेशन नहीं है, इस पे आप जाओगे एंड यू विल सी हियर एंड हैव द रिमूव फील्ड, rename for the visual, right? And move to show a value as a no calculation percentage of grand total, right? We have only that these two option only, इसको कैलकुलेशन ही करना है, इसको हमें परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल शो करवा सकते हैं या फिर इसमें हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते बिकॉज राइट जो आउटपुट आ रहा है डाटा हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम DAX इटसेल्फ, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे पहले ही आ रहा है कि अगर नो कैलकुलेशन करो एंड बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन पे चेक भी है, टिक भी लगा हुआ है, राइट? बट इवन वी कैन ओवरराइट दिस एंड सपोज मुझे इसमें इसका परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल शो करना हो देन वी कैन राइट डू दैट टू हियर, राइट? नाउ आई जस्ट राइट मूव डाउन इसमें और कुछ भी नहीं है इसमें, सो दिस राइट समथिंग वी कैन डू, राइट? अब इसी पे जो आप डिफरेंट इसके DAX फंक्शंस हैं, राइट? यू कैन अप्लाई दैट मीन, मैक्स, एवरेज एंड सम, राइट? ये सारे सारे आपके DAX फंक्शंस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, राइट? व्हाइल जस्ट एग्रीगेटिंग द डेटा वी हैव, राइट, इन डिफरेंट डेटा सोर्सेस, राइट? सो जस्ट 5 मिनट आता हूँ। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अभी आगे अपलोड द डेटा फ्रॉम SQL itself, राइट? एंड देन फिर हम उसको देखेंगे किस तरीके से ये सारे फंक्शंस हैं उस पर लगा के वी कैन गेट द डेटा, वी कैन गेट द रिपोर्ट।
अभी जो हमने डेटा सोर्स यहाँ पे यूज किया है दैट इज राइट समथिंग वी हैव ओनली राइट, नहीं, so now right what we are going to do right, we'll upload the data from right SQL also right, but SQL से डेटा लोड करने से पहले अभी आपने देखा था तो हमने दो टेबल ऐड किया था राइट, वन वाज राइट समथिंग द ऑर्डर्स टेबल एंड दूसरा जो टेबल आपका था वो पर्सन टेबल था राइट, सेव द पर्सन टेबल। अब इसका हम देखते हैं रिलेशनशिप यहाँ पे, सो विल गो हियर एंड विल सी दैट देखो ये दोनों में आपस में कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी कोई भी रिलेशनशिप हम बिल्ड नहीं करते हैं, हम एक विजुअल पे चले जाते हैं। नाउ माई रिक्वायरमेंट है हियर इज दैट राइट, तो डिफरेंट रीजन के जो रीजन मैनेजर है उसका मुझे यहाँ पे देखना है कि प्रॉफिट कितना कर रहा है राइट, उसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट निकालना है। So I'll right click on this right person, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो here with the different persons available right, इसमें देखोगे सारे सारे different person है right, so I'll try to move this to this stack column chart right, then इस पे जाके हम यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, here with the profit also right। अब यहाँ पे जो वैल्यू देखोगे आप हर एक लेवल पे हमें सेम वैल्यू दिख रहा है, ऑल्दो विजुअलाइजेशन क्रिएट हो गया है बट स्टिल वी आर सीइंग राइट द सेम वैल्यू फॉर ऑल। यहाँ पे भी जाओगे यहाँ पे भी सबके लिए सेम यहाँ पे आ रहा है राइट, एंड इसका जो टोटल प्रॉफिट हम देखते हैं इट्स ऐड हियर द बिग नंबर कार्ड यहाँ पे, so let me just click on this and then here we'll add the big number card and इस पे हम टोटल प्रॉफिट देखते हैं राइट, सो ये टोटल प्रॉफिट 28640 यही आ रहा है यहाँ पे भी 284 राइट 286390, इसका हम यहाँ क्या कर सकते हैं राइट, विल जस्ट गो एंड देन फॉर्मेट करके जो नंबर यहाँ पे आ रहा है ना के में राइट उसको चेंज कर देते हैं राइट, सो विल गो ऑन राइट category label right, then here is the value, then column right and then display unit I'll say that none। नंबर यहाँ पे आ गया सेम, सेम नंबर यहाँ पे दिख रहा है 2869390, यहाँ पे भी देखो सेम राइट दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो बाइफर्केशन होना चाहिए राइट दैट इज नॉट हैपनिंग हियर राइट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इस पे इसका और इसका दिन दोनों कोई रिलेशनशिप नहीं है राइट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट राइट बाइफर्केटिंग एट दिस लेवल राइट। यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, एक्स एक्सिस या भी है इसका वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं राइट, तो right then also make this bold right, तो कुछ कलर भी दे देते हैं एक, give right this color to, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है right, give this color right, मैच कर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, we can just right give different colors right to also, कलर भी दे दिया हमने, बट यहाँ पे जो नंबर है राइट दैट इज अगेन राइट वी आर सीइंग द सेम वैल्यू फॉर दैट टू राइट। तो नाउ हियर विद विजुअल, विजुअल में आ गए हमने नंबर्स का वैल्यू दे दिया हमने, देन टाइटल इज शो करना देन शो राइट अदरवाइज ऑफ द टाइटल, एंड वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, एंड देन राइट हियर विद द वैल्यू आल्सो, so these are some values right available, choose writer column then data levels right, also all the on the data level also right, and इसका हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, तो आई जस्ट गो ऑन वैल्यू वाले पार्ट, एंड वैल्यू में मैंने इसका साइज क्या किया, इसका साइज हम यहाँ पे राइट 14 कर देते हैं, सो हैव द राइट वैल्यू फॉर दिस आल्सो राइट, हर एक पे यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू राइट। अब ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये बाइफरकेट नहीं कर पा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ राइट दिस, बिकॉज इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं राइट। अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें राइट जो डेटा हम इसका यूज कर रहे हैं राइट हाउ इट इज वर्किंग, तो फॉर दैट अगेन आई गो टू डेटा मॉडल एंड देन मुझे इसमें इसका रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा राइट। इस वाले पर्सन के अंदर जो रीजन टेबल है राइट, रीजन जो वैल्यू है रीजन कॉलम है दैट इज राइट सिमिलर टू आरईजी जो कॉलम है दैट इज सिमिलर टू दिस रीजन हियर राइट, इसको उठाएंगे एंड इसमें डाल देंगे हम, इसका रिलेशनशिप दोनों में बना देंगे राइट, यानी कि विदाउट रिलेशनशिप हम किसी भी दूसरे कॉलम के दूसरे दूसरे टेबल के किसी भी कॉलम को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे राइट, तो विल हैव टू क्रिएट द रिलेशनशिप राइट। जैसे हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया नाउ यू कैन सी द कार्डिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट इज मेनी टू वन, मीन्स दैट जो फर्स्ट टेबल है ऑर्डर्स उसमें मेनी रिकॉर्ड है जो कि रिलेटेड है राइट दूसरे वाले टेबल के राइट सिंगल रिकॉर्ड से, जैसे कि यहाँ पे देखो वेस्ट मल्टीपल टाइम आ रहा है और इसमें वेस्ट क्या है सिंगल है राइट, तो इसमें एक रिकॉर्ड है जो कि इसके मल्टीपल रिकॉर्ड से रिलेटेड है, दैट इज समथिंग विद द मेनी टू वन रिलेशनशिप राइट। देन आई जस्ट क्लिक सेव, नाउ वी आर डन, जैसे मैंने इसको सेव किया
देखो इसका जो क्या चमत्कार हुआ है यहाँ पे, आई विल गो हियर, नाउ हियर वी हैव द डेटा एट दिस, ठीक है। नॉट ओनली दिस, राइट, बट यदि हमें कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि हमें कैलकुलेट कॉलम, राइट, हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं एंड उसमें मुझे इस वाले का डेटा लेकर आना है, राइट, इसका जो पर्सन है, पर्सन का इंफॉर्मेशन मुझे लेकर आना है ऑर्डर्स वाले टेबल में, राइट, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू अप्लाई हियर द फिल्टरिंग आल्सो, राइट, यानी कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करना है। तो फिर से हम यहाँ पे जा रहे हैं, देन मैंने क्या किया, इसका रिलेशनशिप जो था, राइट, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक, आई जस्ट ब्रेक इट्स रिलेशनशिप, राइट, मेक दिस रिलेशनशिप इनएक्टिव की जगह पे इनएक्टिव कर दिया हमने इसको, राइट। नाउ दिस इज राइट नॉट एक्टिव वन, देन इसको हम हटा देते हैं यहाँ से एंड ऑल्सो आई राइट क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक करो एंड डिलीट कर दो इसको, यस, डिलीट दिस। रिलेशनशिप था दोनों का, जैसे पहले था वैसे ही मैंने कर दिया, इसका रिलेशनशिप पहले था बना हुआ, मैंने रिलेशनशिप हटा दिया। फिर से हम आएंगे विजुअल पे, अगेन यही कहानी हो गई, राइट। बट अब हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ, राइट, दैट पार्ट। तो यहाँ पे आते हैं हम, राइट, आई जस्ट गो ऑन टेबुलर व्यू एंड टेबुलर व्यू में ही हम यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। सो वी जस्ट क्लिक ऑन, राइट, द, राइट, लेट मी हाइड दिस, that is floating one, and यहाँ पे आ जाते हैं, राइट, we just go on, right, then I will go on new column, just click on this, right, new column here, न्यू कॉलम पे क्रिएट करने, न्यू कॉलम पे जाके देन आई से दैट, अब देखो दूसरे टेबल से मुझे डेटा लेकर आना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज रिलेटेड, राइट, यानी कि तरह से लुकअप लग के आता है, मुझे यहाँ पे लेकर जाना है मैनेजर, राइट, सो ये द मैनेजर, मैनेजर, राइट, मैनेजर को लेकर आ गए, देन हियर वी हैव द रिलेटेड, राइट, रिलेटेड वन, रिलेटेड पे गए, देन वी राइट पिक द कॉलम का नेम, कॉलम का नेम है पर्सन, राइट, सो आई से दैट पर्सन, पर्सन, राइट, पर्सन है, बट देखो यहाँ पे वो पर्सन आ नहीं रहा, राइट, जिस टेबल में है ये, उस टेबल से ये, राइट, आ नहीं रहा है इसके अंदर। सो मुझे कहीं ना कहीं इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा, ये पर्सन, राइट, इसका नेम है पर्सन, राइट, पर्सन के अंदर पर्सन है, राइट, सो विल जस्ट राइट अप्लाई हियर द रिलेटेड देन दिस वन, राइट, सो पर्सन के अंदर जो पर्सन है वो, राइट, सो विल नॉट राइट बी एबल टू डू दिस, पर्सन हमने यहाँ पे लिखा, राइट, एंड इट इज नॉट राइट अबाउट पी आर एस ओ पर्सन हियर, राइट, देन विल मेक दिस एंड यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसका फिर से वहाँ पे रिलेशनशिप है नहीं, राइट, सो विल हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, अगेन विल गो हियर, देन इसका रीजन है, इसको रीजन के इससे रिलेशनशिप का बना देते हैं एंड ऑल्सो विल ट्राई मेक दिस एक्टिव। अब ये दोनों में रिलेशनशिप बन गया है, राइट, सो विल गो अगेन ऑन टेबुलर व्यू एंड इसको हम ठीक करते हैं, राइट, सो विल जस्ट गो एंड देखो जैसे हमने यहाँ पे उसका रिलेशनशिप बना दिया, अब पर्सन के अंदर जो पर्सन कॉलम है, राइट, दैट इंफॉर्मेशन हियर वी आर गेटिंग, राइट, मैंने क्या किया, मैं रिलेटेड लिखा, I will write tab this, now right we'll just try to make this and here we have हर एक लेवल पे हर एक जो रीजन है, राइट, उसका रीजनल मैनेजर का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया, राइट, एंड आपका जो विजुअलाइजेशन व्यू क्रिएट किया था, दैट राइट दैट इज ऑल्सो रिफ्रेश्ड हियर, ठीक है। अब हर एक रीजनल मैनेजर के बेसिस पे वी आर सीइंग, राइट, इन्फॉर्मेशन। अब आपको यदि कोई विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है यहाँ पे एंड मुझे यहाँ पे देखना है कि हाउ इट इज जस्ट वर्किंग, राइट, एंड वी कैन जस्ट राइट डू दैट टू, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक हम यहाँ पे राइट मैप चार्ट क्रिएट, फील्ड मैप चार्ट क्रिएट करते हैं, राइट, तो फील्ड मैप चार्ट में विल जस्ट राइट सेग्रीगेट दिस दीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रीजन्स, राइट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पिक करता हूँ, पिक द राइट प्रॉफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, राइट, एंड देन वी जस्ट ऐड हेयर द रीजन ऑल्सो, राइट, रीजन इन दिस स्टेट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लेट मी सी द स्टेट कैसे वर्क कर रहा है ये। सो हियर विद द स्टेट, राइट, स्टेट ऐड कर दिया हमने। अब मुझे इसको जो ऐड करना है, मुझे इसमें ऐड करना है डिफरेंट रीजन, ऐड द रीजन ऑल्सो, राइट, डिफरेंट रीजन को इसने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, राइट, सो दिस इज समथिंग हियर विद द फील्ड मैप चार्ट, राइट, विद यहाँ पे आपका डिफरेंट स्टेट्स है, हियर विद द प्रॉफिट ऑल्सो, राइट, उस स्टेट का जो डिफरेंट स्टेट है एंड देन यहाँ पे जो रीजन है दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी आर राइट सीइंग, हाँ, राइट,
हर एक केस में देखो साउथ, राइट, ईस्ट, देन सेंट्रल, राइट, देन दिस इज समथिंग बेस्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो ये जो हमें प्रॉफिट शो कर रहा है एट स्टेट लेवल दिखा रहा है, राइट, रीजन लेवल इंफॉर्मेशन ये हमें नहीं दे रहा है, राइट। सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे स्टेट को हटा दिया, राइट, स्टेट हटाने से ये काम नहीं चलेगा, राइट, तो मुझे ऐड करना होगा स्टेट, रीजन हियर, रीजन ऐड करने से कुछ नहीं होगा ये, राइट, add this here and then state को यहाँ पे add कर। So now right this is something, right, we have data, data हमारा बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, right, I'll just go on other part, right। So इसको यदि हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये आपका ऐसे दिखेगा, right, field map, हर एक रीजन का अलग अलग इसने यहाँ पे मूव कर दिया, राइट। हाँ, राइट, जैसे आपको बनाना है यू विल क्रिएट, राइट, दैट अकॉर्डिंगली। जैसे आर्क एजोर आर्क मैप क्रिएट करना है, सो दैट इज नॉट राइट समथिंग अवेलेबल हियर, बट हम इसको इसके से बनाते हैं, राइट। अब हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे रीजनल लेवल पे या कंट्री स्टेट लेवल का इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, मुझे यहाँ पे इसको ड्रिल थ्रू करके, राइट, इस पे क्लिक करें एंड देन इसके मैनेजर को हम देख लें, राइट। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, सो हियर गो ऑन दिस पार्ट, राइट। एंड इसमें हमने क्या किया, एक बना देते हैं पाई चार्ट क्रिएट कर देते हैं, राइट। पाई में हमने बोला कि जो डिफरेंट मैनेजर है उसका प्रॉफिट क्या चल रहा है, राइट, दैट इन्फॉर्मेशन विल गेट, सो हियर विद द पर्सन एंड देन इसका जो प्रॉफिट है दैट, राइट, दैट शेयर विल जस्ट शो हियर, राइट। सो एक आपका इन्फॉर्मेशन ये मिल गया, ठीक है, एक आपने ये क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो हर एक मैनेजर का यहाँ पे प्रॉफिट का, राइट, रेशियो हमें दिख रहा है, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया यहाँ पे, राइट, मुझे इसका प्रॉफिट का दिखने के बाद मुझे हर एक, राइट, मैनेजर का, राइट, हर एक मैनेजर का we just go on, right, and then we just select here the this chart, right। I just select here column chart to, column chart पे जाके यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं column chart एंड मुझे इसमें क्या करना है, इसमें हर एक मैनेजर का, राइट, मैनेजर फिर से हम पिक कर लेते हैं यहाँ से, पर्सन हियर भी है, राइट, एंड पर्सन का यहाँ पे मुझे देखना है कि सेल्स कितना लेकर आ रहा है, सो हियर इज सेल्स इन्फॉर्मेशन आल्सो, राइट, एंड इसके रीजन का भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हियर द रीजन आल्सो, राइट। हर एक सबका अपना अपना रीजन है, तो दैट इन्फॉर्मेशन हियर वी आर, राइट, सीइंग। अब मुझे क्या करना है, इसमें ड्रिल थ्रू में ऐड कर देना है इसका, राइट, इसके ड्रिल थ्रू में ऐड करना है मुझे, राइट, इसके रीजन को, राइट, तो रीजन है या फिर स्टेट को हमें ऐड कर देना है इसमें, राइट। सो ऐड हियर द स्टेट हियर, राइट, इन ड्रिल थ्रू, यहाँ पे देख लो ड्रिल थ्रू आ रहा है ये, इसी में मुझे ऐड करना है इसके स्टेट को, ऐड द स्टेट हियर इन ड्रिल थ्रू, राइट। अब यहाँ पे जैसे आप ऐड करते हो, देखो यहाँ पे जो इस तरीके टाइप से फील्ड यहाँ पे ऐड हो गया, राइट, एंड जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग चार्ट, राइट, चलेगा। एंड देन ऑल्सो हियर विद राइट द बैक बटन टू, जस्ट क्लिक ऑन दिस बैक बटन, नाउ वी आर इन दिस राइट डेटा सेट। अब यहाँ पे जाके हम राइट क्लिक करना है इसको, जैसे राइट क्लिक करोगे नाउ हियर वी हैव ड्रिल थ्रू, राइट, ड्रिल थ्रू पे जैसे आप क्लिक करोगे, राइट, नाउ इट विल जस्ट राइट गो टू सेट पेज 5, राइट, एंड देन आई जस्ट क्लिक ओके, नाउ हियर वी हैव द डेटा, राइट, यस, राइट। अब इसने क्या किया है, बास इंटर फिल्टर आउट किया एंड देन इसमें जो डेटा आपका है, राइट, इट विल जस्ट शो यू। यहाँ पे इसने मुझे लग रहा है एक और फिल्टर लगा दिया है रीजन का भी, रीजन का भी इसने फिल्टर लगा दिया यहाँ पे, राइट, एंड देन इसका भी फिल्टर लगाया है, राइट। सो दिस इज समथिंग, राइट, इट इज जस्ट वर्क हियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट जस्ट अप्लाई, राइट, दीज फिल्टर्स हियर एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, राइट। तो लेट मी जस्ट राइट ऐड हियर द स्टेट, और फिर या फिर आप यहाँ से ले कर जा सकते हो, सिटी ऐड कर सकते हो, एक नेक्स्ट लेवल का इंफॉर्मेशन है ये, आई राइट ऐड हियर द सिटी, then again just right go on this page and यहाँ से हम राइट डेटा को पिक करेंगे, एक सर्टेन डेटा को, राइट क्लिक एंड देन वी जस्ट राइट गो ऑन। अच्छा सिटी इसमें है ही नहीं, सिटी का हमने ऐड ही नहीं किया, राइट, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट राइट। स्टेट ही हमने ऐड किया है, तो ड्रिल थ्रू में स्टेट ही बच रहेगा यहाँ पे, सिटी नहीं चलेगा। जिस सिटी को हमें ऐड करना है तो वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें सिटी को एक्चुअल में।
then only it will just try to work. So here we'll add this. Now it is added into drill through. Just click on this. Right now I'll just right click on this part, and then here we have the right. क्यों नहीं रहा है इस पे? ड्रिल थ्रू में ऐड नहीं हुआ? ओके, ड्रिल थ्रू में ऐड नहीं हुआ ये स्टेट, यहाँ पे ऐड हो गया। drill through में ऐड नहीं हुआ, so drill through right will go here, then add the data in the drill through, right? Then next I'll just click on this one, right? अब देखो यहाँ पे drill through जो करवा रहे हैं हम, right, इसके बेसिस पे करवा रहे हैं। So we have the page 5 now, right here we have the drilling at option available। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, we can right just apply the drilling right option also, right? बट अभी जो आपका डेटा यहाँ पे दिख रहा है, पर्सन दिख रहा है, कौन सा पर्सन है, टोटल सेल्स क्या है, राइट, ऑल द इन्फॉर्मेशन इट इज जस्ट राइट शोइंग। तो हमें थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेटिव बनाना है। तो नाउ अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू राइट few things here, right? So I'll go and then I click here again, just click on this. Right now again I'm just write this data set, and then I just go here on this, and यहाँ से हम filter हटा देते हैं इसका। नया filter हमें लगा हुआ है इसके अंदर, so we just clear the all filters here, right? Again I'll just add the state, and now right what I'm going to do, right, I'll create here another report, right? So यहाँ पे हम एक waterfall chart, right? Let me just see if we can keep line, then area chart, and then here just take area chart, and next let's take wall chart. So I'm just going to create this part here, right? So I'll click on this, right? Then इसमें हम देखते हैं कि इसका जो डिफरेंट सिटी है, राइट, एक सर्टेन सिटी में, एक सर्टेन स्टेट में कौन सा सिटी है, राइट, एंड देन उस सिटी का क्या प्रॉफिट है, दैट इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू राइट टू पिक हियर। तो मैं यहाँ पे गया, सिटी ऐड किया, एंड देन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया प्रॉफिट, राइट? सो सिटी वाइज प्रॉफिट इट इज जस्ट राइट शोइंग राइट नाउ, राइट? अब इस पे जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, उस सिटी, उस स्टेट के सिटीज को ही सिर्फ दिखाएगा जो कि फिल्टर पे आएगा, राइट? सो अगेन आई जस्ट गो हियर, and then we'll just right click on this part, right click on this, right, and we'll go to drill through page 5। now we are done, so here we are right only information of that city, those cities, right, only जिसका कि हमें यहाँ डेटा फिल्टर होके दिख रहा है, right? This is right something we can do right in Power BI। अब देखो यहाँ पे तो हमने फिल्टर यहाँ पे लगाया है, राइट, दैट इज, अब वहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, फिर हम वहाँ पे जा रहे हैं, राइट, बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करने का, राइट, मैं राइट क्लिक नहीं करना चाहता हूँ, राइट? व्हाट आई वांट, आई वांट दैट मैं एक बटन बनाऊं, उस बटन पे क्लिक करूं, सेलेक्ट करूं एक एरिया को, फिर उस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे वहाँ पे वो नेविगेट कर दे, राइट? तो फॉर दैट, राइट, इवन वी कैन डू दैट टू, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया पे आएंगे, देन विल इंसर्ट हियर अ बटन। इंसर्ट हमने ऑब्जेक्ट किया था लास्ट क्लास में भी, तो विल जस्ट गो एंड देन इंसर्ट हियर राइट ब्लैंक बटन, राइट, ब्लैंक बटन पे जाके देन इसको हम नीचे की तरफ ले आते हैं। सो हियर गो एंड देन सेलेक्ट, राइट, मूव दिस डाउन हियर। हमने बोला इसको कि गो टू राइट ड्रिल, राइट, इसका हम नेम दे देते हैं ड्रिल, ठीक है, या फिर पेज 5 दे देंगे इसका नाम, राइट? सो आई गो हियर, इसका शेप रखते हैं जैसे वैसे ही, एक्शन पे चले जाते हैं, एक्शन को ऑन करते हैं। एक्शन में हमने इसको बोला कि इसका जो एक्शन है दैट इज समथिंग वी आर द राइट ड्रिल थ्रू। सो जस्ट क्लिक ऑन ड्रिल थ्रू, देन विल क्लिक हियर, राइट? नाउ आई से दैट पेज 5 पे लेकर चले जाना, इसको ड्रिलिंग करना है, पेज 5 पे लेकर चले जाओ तुम, ठीक है? देन इसका स्टाइल में आ जाते हैं एंड इसका नेम दे देते हैं। सो हियर विद द राइट नेम आल्सो, टेक्स्ट ऑन किया हमने, एंड इसका हमने नेम दे दिया स्टेट, राइट, STAT स्टेट, राइट? देन स्टेट हियर, राइट? देन इसका फील्ड हम ऐड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, एंड इसका कलर भी कुछ दे देते हैं, सो ऐड द सम अदर कलर, राइट? इसमें हम ये वाला कलर दे देते हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट डू दिस, इसका हम और भी साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे एक ड्रिल थ्रू टाइप का बना लिया, राइट? बट ये ड्रिलिंग का बटन जो है आपका तभी एक्टिव होगा जब वहाँ पे आइटम आप सिलेक्ट करोगे, तो इसको हमें ड्रिलिंग करवाना है।
इसका भी एक्टिव है, राइट, हमें नहीं दिख रहा है ये आइटम, बट जैसे ही मुझे इसको शो करवाना है, राइट, तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू एट देन ऑन क्लिक करेंगे एक एरिया पे, जैसे हमने इस पे किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया, नाउ सी राइट इट इज एक्टिव हियर, just control and click and now it will just right navigate you to that area, that part here. ठीक है, so not only right clicking on the right area part, what we can do, even we can just right go right, with the help of button here, again button देखो inactive आपका है, बट जैसे ही आप किसी एरिया को सेलेक्ट करोगे, नाउ दिस बटन गेट वेल एक्टिव, जस्ट क्लिक ऑन दिस, नाउ इट विल राइट अगेन मूव यू टू राइट दिस पार्ट, राइट, so this is right something we can do right with the help of drill through, right. अभी हमने क्या किया है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, राइट, डेटा मॉडलिंग किया है, वी हैड टू डेटा सोर्सेज एंड उसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, हमें एक ही जगह एक ही व्यू में लेकर आना था, राइट. So just try to make relationship between these two, and we can use all the columns available on those two data sets, right. We can just right, perform this task here, right, to perform just to right doing the data modeling activity on that area. ठीक है, अब क्या करते हैं हम, राइट, जो डेटा सोर्स हमारा है, राइट, नाउ आई एम गोइंग टू लोड डेटा फ्रॉम एसक्यूएल, अभी हमारे एक्सेल में डेटा था, दोनों एक्सेल का ही फाइल था, वहीं से डेटा को लोड किया, देन हमने उसमें एग्रीगेशन फंक्शन लगाया, मैन मिन मैक्स राइट एवरेज वगैरह, एंड देन उसका यूज करके हमने एक डेटा बना लिया, राइट. नाउ अगेन आई गो ऑन राइट अदर पार्ट एंड देन आई एम गोइंग टू लोड डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, सो हियर वी हैव द एसक्यूएल सर्वर, राइट. देन यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर से लोड करने से पहले मुझे सर्वर का नेम देना पड़ेगा, so here we have the SQL, right, and इसमें से मैंने एक व्यू बनाया है, right, so I just wanted to right load that view only, right, so let me just load first. तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, राइट, कॉपी करके एंड देन वी राइट जस्ट मूव हियर, ठीक है, यहाँ से ऑप्शनल है वहाँ पे, ये राइट इंपोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी, जस्ट क्लिक ऑन दिस, अभी के हम डायरेक्ट क्वेरी लगाते हैं, क्वेरी के थ्रू हम डेटा लेकर आएंगे, तो we'll just click on this, right, and then here we have option, right, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है just to write just select the database, तो मैं यहाँ पे गया एंड मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस हमारा है दैट इज एक्सेल एचआरए, राइट, उसी डेटाबेस को हम यहाँ पे पिक कर लेंगे, सो हियर वी हैव डेटाबेस दैट इज एक्सेल राइट एचआर, एंड उसी को हम यहाँ पे पिक करेंगे, सो हियर वी एक्सेल, ये भी राइट, देन इसमें से भी जो कुछ एंटिटी है, राइट, उसको हम देखते हैं कि कैसे हम पिक कर सकते हैं, तो ये भी राइट फ्यू व्यूज है आल्सो अवेलेबल, राइट, सो ये भी व्यूज इज समथिंग लाइक फाइनेंस व्यू का है, देन पीएमपी लोकेशन, राइट, एम्प्लॉय मैनेजर, राइट, वी, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय एंड मैनेजर का जो इन्फॉर्मेशन रिलेशनशिप, राइट, उसी को लेकर आना है कि यहाँ पे एम्प्लॉय है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मैनेजर नेम है, सैलरी है, राइट, डिपार्टमेंट नेम क्या है, देन राइट जॉब टाइटल क्या है, सो आई डोंट वांट टू सी दिस इंफॉर्मेशन, देन एम्प्लॉय मैनेजर राइट इंफॉर्मेशन ये भी है, राइट, देन इसका जो सैलरी है, देन दोनों के सैलरी का डिफरेंस भी यहाँ पे आ रहा है, राइट, सो दैट राइट इन्फॉर्मेशन हियर वी हैव ऑलरेडी स्टोर्ड राइट इन दिस डेटा सेट, मैंने क्या किया, यहाँ पे गया एंड देन इसको लोड मैंने कर लिया, राइट, so right now we have just right loaded data from SQL, right, and उसमें भी हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया है, राइट, डायरेक्ट क्वेरी के केस में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि डेटा व्यू में हमें ये नहीं दिखता है, सो आई जस्ट गो ऑन दिस टेबल व्यू, तो इस पे जब हमने लोड किया है डेटा सेट, ये आपको नहीं दिखेगा, राइट, इफ यू क्लिक ऑन दिस, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड इट विल शो राइट दैट दिस टेबल कैन नॉट बी शोन बिकॉज इट इज राइट नॉट इन इंपोर्ट मोड, तो इंपोर्ट मोड में होगा सिर्फ उसी को हम यहाँ पे देख पाएंगे, जो डायरेक्ट क्वेरी मोड में होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे, एंड ये जो कनेक्शन का मोड है, राइट, डायरेक्ट क्वेरी एंड इंपोर्ट, दैट इज ओनली अवेलेबल व्हेन वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस, डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो राइट ये व्यू नहीं आपको दिखेगा, अब इसमें यदि आपको कुछ करना है, राइट, तो आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में, सो हियर विल गो ऑन ट्रांसफॉर्म, राइट, ट्रांसफॉर्म में जाके
जो हमने टेबल लोड किया है, राइट, इसमें कुछ भी मुझे काम करना है, राइट, कुछ किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन करना है, देन वी कैन जस्ट राइट डू दैट। तो अभी के लिए हम यहाँ पे जाते हैं इस वाले में, राइट। अब इसमें एक कुछ जो है नल है, राइट, नल वैल्यू है। जहाँ पे भी नल है, राइट, मुझे क्या करना है उसको, राइट, मुझे इसको अपडेट कर देना है, right? यदि इस वाले में नल है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, राइट, नो मैनेजर, राइट, या फिर सुपर बॉस, राइट। तो हम यहाँ पे गए, हम यहाँ पे रिप्लेस किया इसको, एंड वैल्यू इज राइट हियर वी हैव रिप्लेस, रिप्लेस वैल्यू इज नल हियर, राइट। नल को मुझे रिप्लेस करना है नो मैनेजर, राइट, नो मैनेजर, ठीक है। दैट क्लिक ओके। नाउ राइट वी आर, बट ये रिप्लेस हुआ नहीं क्योंकि ये, इसको रिप्लेस करना है नल को, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये दिस इज राइट ऑल्सो केस सेंसिटिव, बहुत ही राइट केस सेंसिटिव है ये। तो अभी भी नहीं ले रहा है, राइट, नल, NU, राइट। हो गया रिप्लेस, बट बिकॉज राइट इट इज वेरी केस सेंसिटिव, राइट। तो जब तक इसको पूरी तरह केस में नहीं देंगे ना, राइट, इट विल नॉट वर्क। अब यहाँ पे दोनों पे नल है, तो इनको भी मुझे रिप्लेस करना है विद जीरो, इसको एंड रिप्लेस दिस राइट नल विद जीरो, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद जीरो, राइट, बिकॉज जो उसमें जा रहा है, क्लिक ओके। नाउ वी आर डन। So now right in my data set there are right no column, right, where we have right null value, right, null वाला जितना था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। Now I just right load this, apply, close and apply, right। Now again I just go on power view, and then यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय का टेबल डेटा हमने लोड किया है, that we can just use that data set right to by just creating the reports, right। यहाँ पे गए हमने बोला कि ठीक है, एम्प्लॉय का जो जितने भी एम्प्लॉय है, राइट, एम्प्लॉय एफ नेम, एम्प्लॉय, राइट, मैनेजर का यहाँ पे नेम आ गया आपका, राइट। तो मैनेजर का मुझे देखना है कि मैनेजर, राइट, किस किस मैनेजर का एक नेम है, उसमें जो उसका सैलरी एंड उसके एम्प्लॉय का सैलरी का डिफरेंस कितना है, शो एंड शो हियर, राइट, हियर वी हैव द मैनेजर्स एंड देन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, राइट, एंड देन हिज सैलरी डिफरेंस, दैट इंफॉर्मेशन हियर वी आर राइट सीइंग। सो आई गो एंड देन अपडेट दिस। अब इसकी क्या करना है, फॉर्मेटिंग कर देनी है आपको, राइट। तो वी जस्ट राइट सी दिस, अब इसको दूसरे फॉर्मेट में ले लेते हैं, सो दैट हमें थोड़ा डेटा दिखता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर एक मैनेजर का नेम, राइट, एंड देन उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ राइट दिस वन। So let me just hide this, remove this, right। Now here we have the manager and उनका राइट जो रिपोर्टी है उसका डिफरेंस, उसके सैलरी का डिफरेंस, राइट। So we can just load this data set from SQL itself and we can create right kind of information to SQL में भी जब डेटा लोड करते हो वहाँ पे भी डेटा मॉडलिंग के लिए राइट इंफॉर्मेशन आता है हमारे पास, राइट। डू यू वांट टू राइट get load the data related data also, right, we can just do that too। अब जो हमने डेटा यहाँ पे लोड किया है, राइट, फ्रॉम SQL, अब इसमें मुझे कुछ काम करना है, जैसे कि हमें सैलरी है, राइट। तो हियर आई जस्ट वांट टू सी द सैलरी, राइट। तो एम्प्लॉय का जो एवरेज सैलरी है एंड मैनेजर का एवरेज सैलरी है, मुझे वो निकाल के लाना है, राइट। तो फॉर दैट विल गो एंड क्रिएट द मेजर, राइट। हमने यहाँ पे क्लिक किया, देन विल जस्ट, या फिर मैक्सिमम हम सैलरी ले रहे हैं, राइट, मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय का, मैक्सिमम सैलरी राइट मैनेजर का, मैक्सिमम सैलरी ऑफ राइट एम्प्लॉय, मैक्स सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, employed here, right? So max, right? Then we just say that P underscore salary, right? So you have the salary here, P salary, maximum salary ये हमें दे देगा। Then इसी तरीके से हम निकालेंगे दूसरा, right? Next measure would be the minimum, right? The mean salary, right? So say that this is mean salary। इस सारे आपके एग्रीगेशन फंक्शन है, right? And we can just use these, right? Who are just working in data system। हमने बोला कि मैनेजर का या फिर एम्प्लॉय का ही ले लो, मैं एम्प्लॉय का राइट मिनिमम सैलरी से इधर ई राइट मिनिमम सैलरी, here is the employee का minimum salary, right। Now we are done and then here we have the minimum salary of employee also, right। दोनों का, मैनेजर का भी सैलरी मिल गया हमें एंड एम्प्लॉय का भी सैलरी हमें यहाँ पे मिल गया, राइट। सो नाउ
we are done, right? And then here we are, right? Here we are just going to right do this, right? सारे हमने यहाँ पे, तो इसमें जो हमने रिपोर्ट बनाया, राइट, in this report we have just used some DAX function also, right? And those DAX function here we have aggregation वाला, right? Mean, max, average, sum, right? ये सारे फंक्शन आप लगा सकते हो, and you can create the measure and right calculated column टू, right? कॉलम में कैलकुलेशन करना है, दो कॉलम हमारे पास है, उसको हमें ऐड करना है, राइट? देन वी कैन जस्ट ट्राई टू डू सेम थिंग, राइट, विद द हेल्प ऑफ these DAX function, right? तो एट सेम वे इफ ट्राई टू मूव अहेड, एंड देन मुझे यहाँ पे देखना है कि डिस्टिंक्ट आपके जो है मैनेजर कौन है, लेट जस्ट गो हियर, राइट? सपोज मुझे काउंट करना है, राइट? काउंटिंग करना है, मुझे देखना है कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, या फिर मेरे पास जो ऑर्डर्स आए हैं, राइट, उसमें यूनिक प्रोडक्ट कौन कौन सा हम सेल कर रहे हैं, राइट? तो प्रोडक्ट का नेम मुझे लेकर आना है, यूनिक वाला पार्ट, राइट? या काउंट करना है कि टोटल राइट यूनिक प्रोडक्ट कौन कौन सा है। आई जस्ट वांटेड टू नो दैट कि हमारे पास टोटल कितने यूनिक प्रोडक्ट हैं। So for that, what we can do is we can go and then we create a new measure. New measure में हम जाएंगे. Then again I'll just go right to this part here. And right now we are in which table? तो हमने बोला कि total product, right? Product. Then यहाँ पे हम type करेंगे distinct count, right? And this will just appear here. अब ये क्या करेगा? Distinct count क्या करता है? That unique item हमें return करता है, right? So if I just wanted to know that how many managers we have, ठीक है? मैनेजर्स नेम हमने पिक किया, राइट, डिस्टिंक्ट, देन आई जस्ट गो हियर एंड इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट? सो अब इसको जब आप लेकर आओगे तो ये हमें बताएगा कि टोटल मैनेजर कितने हैं। सो यू हैव राइट टोटल मैनेजर हियर, राइट? एंड इसका जब भी हम कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करते हैं ये इस तरीके से बनाता है, राइट? सो प्रॉफिट, देन इसका मैनेजर कहाँ पे है? लेट्स सी हियर वी हैव द मीन, मैक्स, राइट, एंड आल्सो मैक्स क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी। देन हमने यहाँ पे लिखा भी जो बनाया है उसको क्या नाम रखा है? टोटल मैनेजर। तो टोटल राइट प्रोडक्ट हियर वी है, राइट? टोटल प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट, राइट, वेयर वी है, हियर वी है टोटल प्रोडक्ट, राइट? यही टोटल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे। अब मुझे क्या करना है? इसको मैंने ऐड किया यहाँ पे, राइट? सो नाउ हियर इज टोटल प्रोडक्ट हियर वी है टोटल 11 प्रोडक्ट। पूरे उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज समथिंग हियर विद द टोटल ओनली 11 प्रोडक्ट्स एंड ऑल, राइट? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इवन राइट गेट द सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम a data set, right, whatever we have, and then we can perform the data modeling activity, right, in this part, right? So that's it for today. I'll share this file, right? And आप लोग थोड़ा सा इस पे क्या करो,